हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मंजूमल बॉयज के इंटरवल सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। हमें लग रहा है कि कोई भूत वगैरह हो गया। हो सकता है। ओ ओ भाई साहब, वो ना सिचुएशन का उनकी पैनिक सिचुएशन फिलहाल वो नहीं समझ सकते, लेकिन एटलीस्ट वो उनके दोस्त थे तो इसलिए शायद उनके कहने पे निकल तो भी गए। अब वो पुलिस के पास जा रहे हैं। तो देखो वहाँ पे पीछे എടാ അവന്മാർ പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പോയിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്തെടുക്കണേണ് ഞാനും എന്നോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് വാടാ मतलब उनका ग्रुप 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। പോർന്നിട്ടാ അമ്മേ അന്തക്കുളിതാ മോനെ ദാ സുഭാഷേ എടാ സുഭാഷേ എന്താടാ അവിടെ എന്തായി? അവര് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിട്ട് വിട്ടാ ആളോട് ചൊല്ലു വരും എന്തായി എന്താടാ സുഭാഷേ സുഭാഷേ बहुत डर चुके हैं वो लोग। हमारे यहाँ पहला इलाज ये रहता है कि कोई भूत बाधा ओ, हो। वो फिर से वो वियर्ड आवाज आना शुरू हो गई। वो बीजीएम है நான் சொல்றேன். हाँ नहीं, उसमें वो आवाज आ रहा है ऐसा। நான் சொல்றேன் எல்லாத்தையும் கொடு. ओह नो ओह गॉड, बादल आ चुके हैं। मतलब उसमें पानी भी भरेगा। नो नो, बहुत डेंजरस हो सकता है। सीन सीन है भाई साहब, सीन। क्योंकि अगर वो नीचे बचे भी होंगे तो पानी से नहीं बच सकते। मुझे लगता है उन्होंने किसी चीज से उसको कवर कर लेना चाहिए। ये लोग पुलिस के पास, मतलब सिचुएशन कितनी खराब है वहाँ पे। हम लोगों को भी अंदाजा है अगर ये पानी वहाँ पे भी है तो वो गड्ढे में जरूर भरेगा। मतलब इसके साथ आए थे, सब कुछ बैड हो रहा है। बैड ही हो रहा है। वो तो पूरा सदमे में ही चले गए। भाई साहब, अब तो ऐसे लग रहा है कि इनको ही कुछ ना हो जाए। इतनी खतरनाक बारिश हो रही है वहाँ पे। देखो कांच पोंछ रहे हैं, छोटे छोटे कांच। ओह ओह ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ വാ വാ சரி 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 ഇതല്ലേ உள்ளதா இருக்காரு போங்க. கவர்மெண்ட் வேற उनको शहर में आना पड़ा पहले। தெரியல இல்லையா കൂട്ടുകാരെ കൂടി പോയി സാറേ. സാർ പ്ലീസ്. സാർ ഞാൻ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടി പോയി സാറേ. யாரையா நீங்க கூட்டுகாரனோட கூடி
யார் இவனுங்களெல்லாம் உள்ள விட்டது? ஸ்டேஷன் ஃபுல்லா தெப்ப கொலை ஆக்கிட்டு இருக்கானுங்க. குழி போய் சார் டேய் பசங்களா இங்க வாங்க. இங்க வாப்பா எல்லாம். யாராவது ஒருத்தன் பேசு. സാർ ഒന്ന് വാ സാറേ ഞങ്ങൾ പ്രശ്നത്തില ஓ ഒന്ന് மலையாளியா? என்ன பிரச்சனை? தண்ணி போட்டு உங்களுக்கு அடிச்சுக்கிட்டீங்களா? അല്ല സാർ അങ്ങനെയല്ല സാറേ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് കുഴി വീണു പോയി സാറേ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. குழிக்குள்ள விழுந்தவன தூக்கி விட வேண்டியதானே? அதுக்கு எதுக்கு இங்க வந்தீங்க? ஆமா எந்த குழி? സാറേ ഗുണ കേവിലെ இது குணா கேவா? ராமையா கேட்டியா? குணா கேவ்ல போய் விழுந்துட்டானா? என்னன்னு கேளு. குணா கேளுங்கிற பள்ளமா? ஏண்டா குணா கேவ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா. அங்க என்ன போனீங்க? அளவுக்கு மீறி ராமையா அடிக்காத. உண்டி முதல்ல போய் எக்ஸ்பெக்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணு. வந்து उनको पता है कि वो कितना डेंजर हो सकता ஏன்டா அங்க போனீங்க? அதான் உள்ள இறங்க கூடாது போர்டுலாம் வச்சிருக்காங்கல்ல. இப்ப பாரு உன் ஃப்ரெண்ட் ये திரும்ப तो बात है ना போயிட்டான்ல. है. ऐसे समय फिर क्या ही एक्सपेक्टेशन रखते हो? உன் ஃப்ரெண்ட் வர மாட்டான். அவனை யாராலையும் திரும்ப கூட்டு வர முடியாது. मतलब ये पहली बार नहीं அந்த हुआ है. இடத்தோட உண்மையான பேர் என்ன தெரியுமா? டெவில்ஸ் கிச்சன். சாத்தானின் சமையல் அறை. வெள்ளக்காரன் வச்ச பேரு. அவன் வச்சா சும்மா வைப்பானா? அப்புறம் கமல் சார் இங்க வந்து படம் எடுத்து விட்டா பிறகுதான் குணா கேவுன்னு ஆச்சு. சுதந்திரத்துக்கு பிறகு நம்ம கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ல மட்டும் இது வரைக்கும் 13 பேர் உள்ள விழுந்திருக்காங்க. உள்ள விழுந்த யாரும் இது வரைக்கும் திரும்ப வரல. ஏன் அவன் பணம் கூட கிடைக்கல. இதோட ஆழம் 900 அடி இருக்குங்கிறாங்க. 100 சில பேர் சொல்றாங்க और किसी के डेड கொடைக்கானல் बॉडी மலை तक नहीं मिले अब तक. உயரம் இருக்குங்கிறாங்க. இது காத்து வெளிச்சம் இல்லாத பயங்கரமான இருண்ட பள்ளம் தம்பி இது. இதுக்கு முன்னால அந்த குழிக்குள்ள விழுந்தது ஒரு சென்ட்ரல் மினிஸ்டரோட மருமகன். 10 வருஷம் இருக்கும். ஊருக்குள்ள எல்லா போர்ஸும் வந்து இறங்குச்சு. அன்னைக்கு டியூட்டில நானும் இருந்தேன். சாங்கியம் பண்ண சின்ன எலும்பு துண்டு எடுத்துட்டு 15 லட்சம் தரேன். அன்னைக்கு தேதிக்கு 15 லட்சங்கிறது பெரிய அமௌண்ட். பணத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்யறவனுங்க இந்த ஊர்ல இருக்காங்க. ஆனா யாரும் முன்ன வரல. ஏன்? பணத்தை விட மனசு உசுறு பெருசுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு சென்ட்ரல் மினிஸ்டராலே ஒண்ணும் பண்ண முடியல. நீங்க கேரளால இருந்து வந்த சாதாரண டூரிஸ்ட் பசங்க. உங்களால என்ன செய்ய முடியும்? किसी मिनिस्टर के रिश्तेदार को भी वो बचा नहीं पाए. போலீஸ் எனக்கே ஆர்டர் போடுறியா? உங்களை மாதிரி எத்தனை பேரை பார்த்திருப்பேன். நீங்களே கூட்டு வந்து மர்டர் செஞ்சுட்டு ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து கடல் விடுறீங்களா? சொல்லியா? ராமையா ஐயா இவங்க 4 பேர் மேல எஃப்ஐஆர் போடியா? எப்படி இவனுக்கு ஊருக்கு போறானுங்க பாக்குறேன். ओ भाई साहब, पे चार्जेस लगा रहे हैं यार. शायद वो खुद पैनिक कर गए. इंस्पेक्टर उनको नहीं जाना था वहां पे, इसलिए उन्होंने उन पे इल्जाम डाल दिया. बस इनको अंदर कर दो और ये रेस रफा दफा कर दो. हाँ. वो चाह रहा है उस गड्ढे में पानी. अरे भाई साहब, वो 900 फीट डीप है भाई साहब. वो उनका हाथ लगा सकते थे वहां पे. हाँ, ये सबसे बुरी आदत होती है. वो सब अगर खुद पकड़े गए. हाँ. सुभाष. वाशी हाँ.
सुबह, अच्छा उनके बचपन का दिखा रहे। वो कितना रिलेट कर पा रहे हैं उसको, वो सब उनको ढूंढ रहे हैं। हाँ, भाई साहब, ये ब्यूटी है मलयालम मूवीज की, जिस तरीके से वो चीजों को कनेक्ट करते हैं। शायद अभी भी सिचुएशन वैसी है। वैसी ही है। वो एक डीप पिट में अंदर छुपे हुए हैं। ओ, वो शायद वहां जिंदा हो। हाँ, वो खो गए हैं, अकेले अकेले पड़ चुके हैं। ओ भाई साहब, बिल्कुल उस केव की तरह। उसी जंगल में। वाह। वही जगह। कोइंसिडेंस है ये। எங்கதான் தேடுறது? ஒற்றமல்ல என்னையப்பா தேடுற? உனக்குள்ள ஒரு பையன் விழுந்தானே, கேரளாக்கார. அது கூட சரியா முக்கா தின்னுகிட்டு இருக்கா. என்னப்பா சொல்ற? ஆண்டா. ஐயோ என் வேலை. ச்சே, ஒரு மனுஷன் நிம்மதியா अच्छा, ये वहाँ के गार्ड है। खाना भी नहीं खाए वो वैसे। वहां से पूरा पानी उस केव में जाता हाँ, है। और वहां से स्लोप है तो ऑब्वियस है कि वो नीचे ही जाएगा पानी। ऊपर का सारा पानी ऊपर जाएगा। தண்ணி எல்லாம் உள்ள வருமே. लेकिन वो इतनी डीप केव है तो इतनी जल्दी तो भरना। ओ नो नो नहीं 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 नहीं। पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं यार। वो अपना मतलब ट्राई तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे इतना भी कोई इससे कुछ फायदा नहीं होगा। होने वाला है। पानी है यार। हाँ, ऐसे अगर करते रहेंगे तो वो भी गिर सकते हैं उसमें। हाँ, वो भी घबरा रहे हैं। क्योंकि वही उनको लाए थे यहाँ पे, उनकी शायद जिम्मेदारी थी एक उसका तरीके से कि हाँ। रिग्रेट उनको अभी बहुत होने वाला है। ஏய் ஏய் யாரா உள்ள விட்டுது? ஏய் எந்திரி கிளம்பு. இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கிளம்புங்க. ஏய் உன்னை கிளம்ப சொன்னல, வெளிய வா. ஏய் யாரா வே? வெளிய போடா. ஏய் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? காபோல குத்தி கூடற நாள் போய். ஏய் போயிட்டே இருக்க புரியல? வெளிய போ. ஏய் ஆறுமுகண்ணே இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சொல்றேன். என்னண்ணே வேலைக்கு வேட்டு வச்சிருக்கீங்க போல? இந்த பசங்களோட வந்த ஒருத்தன் இந்த குளிக்கல விழுந்துட்டான்பா. தகவல் சொல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஆள் போயிருக்காங்க. இந்த மழை தண்ணிய தடுத்து நிறுத்திட்டோம்னா மிச்சத்தை அவங்க வந்து பாத்துப்பாங்க. உள்ளூர்காரன் நீயே புரியாம பேசிட்டு இருக்க? இந்த குளிக்குள்ள விழுந்தவே இவ்வளவு நேரம் உசோடவா இருப்ப? सही बात है उनकी। தண்ணி போனா என்ன? போறானே. इतने गिरने के बाद कोई जिंदा कैसे इतने सालों में कितने लोग गिरे हैं, फिर भी कोई वो कितना नैरो है, तो उनको कहीं पे भी सर पे लग सकता है, कहीं पे भी लग सकता है। बचना मुमकिन है, नामुमकिन है। ओ, मुझे लगा तो वो भी गिरने वाले हैं।
साहब ओह माय गॉड तो पानी जाने से वो खुद रेस्ट्रिक्शन बन चुके हैं वहां पे। भाई साहब அண்ணே இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிடுறாரு. ஒன்றும் சாப்பிட கூட விட மாட்டோம். ஐயா ஐயோ கதிரேசா இவனை எல்லாம் கூப்பிட்டு போய் அங்க என்ன நடந்துச்சு என்ன ஏதுன்னு விசாரியா. சரிங்க. ஐயோ போறப்ப சும்மா கையாடிட்டு போகாத. கயிறு டார்ச் லைட் எல்லாம் வாங்கிட்டு चलो एक्शन तो लिया कुछ மீடியா तो காரங்களுக்கு வேற விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு. இருக்கிற பிரச்சனையில என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. अच्छा इस चीज की वजह से वो डर रहे இந்த थे। லூசு வேலை என்ன பிரச்சனை வர போதும். அங்க என்ன புடுங்க வர போறீங்க. सही भी है ना ऐसे लोगों की वजह से फिर वहाँ के जो भी மூஞ்சி प्रशासन होता है उन पे तुम सवाल पे नहीं। जिम्मेदारी आ जाती हो அடிச்சுடியா அவங்கள. उनका भी तो काम बढ़ जाता है फिर டேய் உங்களை என்ன வெத்தலை பாக்க வச்சு கூப்பிடணுமா? எந்திரிச்சு வாங்கடா. ஏய் கதிரேசா, ஏற்கனவே பசங்க அடி வாங்கினதுல பயந்து போயிருக்காங்க. பார்த்து கூட்டு போ. ஏன் அந்த குகையில போய் நொட்டும் போது பயம் அங்க போச்சு. ஏய் விடியா. இந்த மலையில வேற என்ன புடுங்க போறோம்னு தெரியல. வாங்கடா. बहुत बड़ी है वो जो मारा है ना वो सही मारा है मुझे भी लगता है। हाँ बट वो ड्राइवर बेवजह पिट गया हाँ वो तो है। वो लोकल था ना वहाँ का। नहीं वो Driver. गाड़ी वाला அதோ था அந்த ना। ஒயின் ஷாப்ல हाँ, போய் हाँ, हाँ। 2 குவார்டர் வாங்கிக்கோ. அப்படியே 2 வாட்டர் பாயிட்டு, ஒரு யூஸ் அண்ட் த்ரோ கிளாஸ், ஒரு கோல்ட் ஃபிளாக்ஸ் சிகரெட். அப்படியே மறக்காம பத்திப்பட்டி ओ வாங்கிக்கோ. भाई साहब सिचुएशन பத்திப்பட்டி क्या है वो? மேட்ச் பாக்ஸ் மனசிலாயோ? பெட்டது போ. என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க? போங்க. லேட்டு புள்ளையா இருக்கானே. சாரே என்னடா அவ கயிறு வாங்கண்டே. கயிறு எல்லாம் போற வழியில கிடைச்சா வாங்கலாம். ये यही से उन्होंने पहले खुद के लिए लेके गए थे उन्होंने पहले ही लेके गए थे ना। என்னடா வந்தமா ஊரு சுத்தி பார்த்தோமா பேசாம போன மாட்டு இருக்கணும். சத்தம் போட்டுருக்கீங்க. நீங்க பேசாருங்க. வெளியூர்காரங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற கட்டிங்க. பேசாம போயிரு. उनके एक्शन से उन पे भारी पड़ रही है। हाँ पहले जो किया था मतलब वो सारे के सारे बचपन के दोस्त हैं। हाँ तब से साथ सिर्फ यही यही सुभाष नहीं है कूद यार। पाए अब तक। भाई साहब जो खुद कहीं कूदने से डरते वो खुद ही आज गिर गए। ट्रांजिशन ओ मैं एग्जैक्टली यही बोल रहा था कि इतना टकराने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता और कितना भयंकर सीन है ये। ओ मौत तो कब की आ चुकी होंगी। बाप रे और भी अंदर है वो और भी नीचे और है वो वो भी ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा गिरे हैं टकरा के गिरे। बहुत पूरी तरीके से और बीच में जाके फंसे हुए हैं वो कहीं तो क्या सीन था भाई। ஏய் மெதுவா போடா.
നിങ്ങൾ എന്ത് മനുഷ്യനാണ് സാറേ? അവിടെ ഒരുത്തൻ കുഴി പോയിട്ട് എത്ര നേരം എന്ന് പറയും. അവൻ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പോലും അറിയാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ஓ தம்பி கோவம் வருதோ? കോപമൊന്നും അല്ല സാറേ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള ആലോചിക്കുമ്പോഴുള്ള വിഷമമാണ്. ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம். என்னோட वो भी இத்தனை क्या வருஷ ही कर அனுபவத்தை सकते हो? சொல்றேன். केव कितनी छोटी है वो। उन्हें उन पता friend है பொழைக்க इतने மாட்டான். सालों से कि वहां से कोई वापस அப்படி नहीं आया, तो பொழைச்சதா बेकार की குணா कोशिश नहीं करना கேவுக்கு ஒரு चाहिए। சரித்திரமே இல்ல. रोप भी ली है उन्होंने। புரியுதா? इतना भयंकर टकराने के बाद कोई बच ही नहीं सकता। அண்ணே போலீஸ் என்ன இவ்ளோ லேட்டா வராங்க? அவங்க எப்போ கூப்பிட்ட நேரத்துக்கு வந்திருக்காங்க? பெரிய விஷயம். चली चली जा मारा. भाग गए। पुलिस वाला अभी भी अंदर ही बैठ के സാർ ഒന്ന് വേഗം ചെല്ലു. டேய் உங்க அவசரத்துக்குலாம் எதுவும் பண்ண முடியாதுடா. நான் என்ன சின்ன பையனா? வயசாகுதுல்ல. என்ன குமரா? அத்துட்டு போச்சா? ஆமா சார், உள்ள ஒரு பையன் விழுந்துட்டான் சார். ஆமாண்டா, நீ வியாபாரத்துக்கு எடுத்துருக்கனே வருவானு. वो वहीं पे ये बैठा है वहीं कब पे से। है और अकेला ही है तब से वहां पे। उसकी हरकतें भी मुझे थोड़ा अजीब भी लग रही है कि वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है। പോലീസുകാരെ നമ്മളെ തല്ലി വിട്ടേട്ടോ. പ്രസാദ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. வேமா சார். அவசரம் முடியாம இருக்கீங்க. வாங்க சார். உள்ள வா. ये शायद गाइड है ना? शायद नहीं, वो पुलिस वाला है शायद। एक तो पुलिस वाला है, एक guide है। हाँ वही पुलिस वाला है जो आ रहा था। ஏய் டோம், நீ என்ன அந்த பசங்க உள்ள கூட்டு வந்தா? சார் விஷயம் கிடையாது தெரியாது எனக்கு. அதான் மாதிரி சார் நான் தான் ஏய் கொடுக்குறேன். நீ என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ற? அதான் நல்லா காலாடி கூட சரி சார். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஐடியா மாட்டேன் சார். சார் பார்த்து 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 இதுல போதும். बेचारे उम्मीद में पानी रोक காசு இருக்காடா? इतने से फ्लैश लाइट से क्या ही होने वाला है। ஏய் பேர் என்னடா? சுபாஷ். சுபாஷ். எவ்வளவு நேரம் आवाज ஆகுது? भी देखो कैसे कर रहे हैं, जैसे कि वो पास में। அவன் உயிரோட இருக்க வாய்ப்பே இல்ல. அங்க பரவாயில்ல சார். எங்கேயா போன? சார் சாப்பிட போனேன் சார். அதுக்குள்ள இப்படி ஆகி போச்சு சார். இதெல்லாம் ஒரு காரணமா? உன் வேலை போக போகுது பாரு. ओ, டேய் வண்டி எடுடா. எந்திப்பா. வண்டி எடுறா. ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കില്ല സാർ. வண்டி எடுக்க மாட்டியா? நீ வண்டி எடுக்கன்னு வையே, உன் வண்டி கொடைக்கால தாண்டாது. സാർ ഞങ്ങളോട് കത്തിക്കുന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല സാറേ, ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കൂല. वाह। சார் சார் ப்ளீஸ் சார் வேணாம் சார் ப்ளீஸ் சார். कोई டோமினிக், स्टैंड நீ ले உள்ள வராத. या ना ले, எனக்கு उन्होंने தெரியும்ல. एक स्टैंड लेके नहीं மஸ்ரூம் जाएंगे கேஸ் போட்டு वापस। உள்ள தள்ளிடுவேன். யோ கதிரேசா, என்னையா வந்து வராதமா பாத்து பார்க்காம முடிவு எடுக்கிற? இது கொலை கேஸ், அப்புறம் கோர்ட்டு கேஸ் அலைய வேண்டியது வரும். மழை குறைஞ்சிட்டே வருது. இன்னும் 10 நிமிஷத்துல நின்னுடுயா. அப்புறம் என்ன வேணாலும் இந்த பசங்களுக்கு செய்யலாம்யா. நம்ம ஊருக்கு வந்த பசங்களை நம்ம தானே பாதுகாத்து அனுப்பணும். பாத்தையா. யோ நீ பண்ண வேலைக்கு உனக்கு ஆப்பு வைக்கிறேன் பாரு. वो क्या ही कर सकते हैं उसको। मतलब एक तरीके में वो पुलिस वाले का भी सही है, वो क्या ही कर लेंगे वहां पे। वही तो, वहाँ की हिस्ट्री ऐसी है कि वहां से कोई वापस ही नहीं आया है, तो उन लोगों को कोई होप ही नहीं है। उन लोगों की तसल्ली के लिए एटलीस्ट वो वहां तक तो भी आए। भी नहीं रहा है।
டேய் இன்னும் எவ்வளவு நேரம்டா இங்க வெயிட் பண்றது? மழையும் நின்றுச்சு. இங்க और wait उनका பண்றது यहाँ ஒரு पे आने का பிரயோஜனம் प्लान இல்ல. भी नहीं था, वो कहीं दूसरे लोकेशन पे जाने वाले थे. ஆறுமுனா பசங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுண்ணா. என்னப்பா சொல்ற? कोई हिल भी नहीं रहा है उस जगह से। कैसे क्या करेंगे वो वहां से जाके? उनके घर पे जाके बताएंगे क्या कि बताएंगे? हाँ क्या करेंगे? தம்பி இங்க இருக்குல்ல, நீ தான் பெரிய ஆளா தெரியற, கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லுப்பா. ஸ்டேஷனுக்கு போனா அவங்க ஃபேமிலிக்காவது இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்ல. സാർ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്ത് പറയാ ഞങ്ങള്? അവനില്ലാതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകും. बिल्कुल सही. फर्स्ट टाइम एक ट्रिप पे निकले और उसमें भी ये हो गया. वो वही गए थे, उन्हें അവന്റെ लेके അമ്മയോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും? ஏய் டோமினிக், உனக்கு தான் இந்த இடத்த பத்தி நல்லா தெரியும்ல. உண்டியில காசு போடுற மாதிரி அந்த குழிக்குள்ள விழுந்தா. அவன் வீதி அவன் போயிட்டான், நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? தம்பி சார் சொல்றது சரிதான். மேல போயிட்டு என்ன பண்ணாலும் யோசிக்கலாம். അവനെ ഇവിടെ കടഞ്ഞിട്ട് വരാനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ஏய் வேலைதான் வந்து இவங்களை எழுப்புவா. தம்பி எந்திரிப்பா, எந்திரிங்க தம்பி, எந்திரி வா போலாம், வா எந்திரி. मुझे लगता है वो जो पुलिस वाले जो भी कर रहे हैं अभी वही सही है. ஏய் எந்திரிடா, எந்திரி எந்திரி, சொன்னா கேக்குற, எந்திரி. எவ்வளவு நேரம் சொல்லு? டேய் என்ன பண்ற? எந்திரிப்பா. वो क्या था? उन्हें आवाज आ रही है पर से। मतलब वो जिंदा है? हाँ हाँ, ओ भाई साहब, वो बच गया. लेकिन जिस तरीके से वो गिरे थे तो वो कोई और था. वही था। वो एक एक साइड में एक ऐसे चल रहा है कि वो बचपन के सीन्स और थोड़ा उनके इमेजिनेशंस। वो एक्चुअल में नहीं चल रहे, वो वही होंगे. तो उनको ऐसा लग रहा है. What I'm saying कि ये ऐसे चल रहा है साइड बाय साइड.
ओ गई आवाज। वो चिल्ला भी नहीं पा रहे। ओ भाई साहब, और उन्होंने इतने सही टाइम पे वो रिस्पॉन्स किया ना कि ओ भाई साहब, वो एक एज पे है। लेकिन अगर रस्सी भी डालते हैं तो कैसे? एक होप तो है उनके पास कि चलो वो मरा नहीं है, वो जिंदा है अभी भी। भाई साहब, तो मानना पड़ेगा इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को। जिस तरीके से इस मूवी की स्टोरी चल रही है, उसके ट्रांजिशन चल रहे हैं, इतने जबरदस्त लगते हैं। मतलब हम समझ ही नहीं पाते किस तरीके से वो हर चीज बदलती है, किस तरीके से वो हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट करती है। बचपन की स्टोरी, अभी की करंट स्टोरी, अमेजिंग। हर सीन लगता है दोस्तों। हर एक सिचुएशन, बचपन की सिचुएशन को करंट सिचुएशन के साथ कैसे जोड़ा गया है, सुभाष के इमेजिनेशंस को कैसे बिल्कुल इस सिचुएशन में जोड़ा गया है। कि जैसे एक हमें सपना आता है कभी कभी कि हम बहुत बुरी सिचुएशन में हैं और हम जोर से चिल्लाना चाहते हैं, उस टाइप का इंसिडेंट वहाँ पे सुभाष के साथ हुआ है। और वो जोर से जब चिल्लाता है, और लकीली जब उसके दोस्त उसे आवाज़ दे रहे होते तभी वो चिल्लाता है। और एक एटलीस्ट एक होप है, क्योंकि सब लोगों को ये लग रहा था कि इस पिट में जो भी गिरता है बिल्कुल। वो जिंदा वापस तो नहीं आता है। और वो पुलिस भी वो चाहते थे कि अब ये सारे दोस्तों को ले जाना चाहिए। और वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन हो गई थी कि अब कोई उम्मीद नहीं है, बट एक लास्ट बार उन्होंने वो आवाज़ दी और उस पर सुभाष ने रिस्पॉन्स दिया है। उसके वजह से तो खुद पुलिस, वहाँ के हाँ, गाइड, वो भी चौंक गए हैं। शौक है। मुझे लगता है सुभाष शायद डेथ हो जाते, लेकिन वो अगर उस स्लोप पे ना गिरते शायद, जो भी क्योंकि उस है स्लोप पे वो गिरे हैं तो मुझे लगता है वहां से भी नीचे मतलब बहुत नीचे है। हाँ। तो स्लोप की वजह से वो रुक गए, इसलिए शायद वो वहां पे बच गए। और ये काफी हो सकता है रेयर मोमेंट हो उस स्टोरी को लेके। मैंने कहीं तो भी सुना था कि ये एक रियल इंसिडेंट पे मूवी है, तो हो सकता है तो हुआ है दोस्तों कि वो बच गए हैं। लेकिन स्टिल पॉइंट ये है कि वो उनको बाहर निकालेंगे कैसे, क्योंकि अगर वहां से रोप उनको भेजनी भी है तो कितनी भेजनी है अंदर, वो भी एक पॉइंट है। और मुझे नहीं लगता कि सुभाष में इतनी ताकत है कि वो उस रोप को पकड़ भी सकते हैं। बिल्कुल भी तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे हैं। ये जो सीन था ना, ओवरऑल इतना इमोशनली रोलर कोस्टर की तरह था। मतलब ये जो लास्ट सीन था उसमें उन दोस्तों को अगर आप देखोगे तो वो इमोशनली वो जो वहाँ पे फील कर रहे होंगे ना, आप फील कर सकते हो कि चलो एक आवाज आई है। आप थोड़े बहुत रोने पे भी आ जाओगे, थोड़ा खुश भी हो जाओगे कि चलो अब इनके पास कोई उम्मीद तो है कि सुभाष जिंदा है, एटलीस्ट जिंदा तो है। एक मोमेंट ऐसा है जहाँ पे वो पीठ में पानी भरने वाला होता है, तो वो सबके सब लोग वहाँ पे गोल गोल लेट जाते हैं ताकि पानी अंदर ना जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सुभाष कैसे भी बच जाए। एनी हाउ वो बिल्कुल बच सके। तो ये और एक मोमेंट जो है वो सबसे मतलब गूज़बम्प मोमेंट था, जहाँ पे सारे दोस्त पानी में ऑलरेडी कूद जाते हैं और वो उनको आवाज़ दे रहे होते कूदने के लिए। और जब वो कूदते हैं तो वो हमें मोमेंट दिखाया वो कैसे गिर रहे हैं। मुझे लगता है हमने बॉलीवुड हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रांजिशन देखे हैं, बट ये वाला जो तुम कह रहे हो कि वो नदी में गिरने वाला सीन और जिस तरीके से वो पिट में गिरे, ये इतना स्मूथेस्ट ट्रांजिशन था अब तक का देखा हुआ। क्योंकि वो काफी पीसफुल है और वो इतना भयंकर। एक
सिचुएशन में अपने डर पे काबू करके वो पानी में गिर रहे हैं, और एक है जो डर मतलब गिर गए हैं और वहां पे आके अब वो ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं, और हिल भी नहीं सकते उस जगह से, कुछ भी वो नहीं करने के जिस लायक तरीके से पूरी वो उनकी बॉडी ब्लड से भरी हुई है भाई साहब, वो तो देखना भी नहीं हो रहा है। इतना मतलब खराब मोमेंट हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन होप सो वो अभी जिंदा है। स्टिल मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि वो उनको कैसे निकालने वाले हैं। शायद कुछ तो तरीका हो उनको निकालने का। और देखते हैं, मतलब ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हर बार एक चीज़ जो है वो काफ़ी होल्ड करती है हमें, और काफ़ी मतलब एंगेज करके रखती है मूवी। कमाल की मूवी है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों मंजूमल बॉयज़ के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।